جو 3 بنیادی وجہ ہیں خودکشی کے، میرے خیال میں وہ سب سے پہلے اس وقت جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ امیچور ہاتھوں میں موبائل تھمایا گیا۔ سیریل 3 پہ جو میں نے تجزیہ کیا وہ یہ ہے کہ شادی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، کہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی طرف نہ بڑوں کا رجحان ہے، نہ جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں نہ ان کا رجحان ہے، اور نہ ریلیجسلی اس پہ کوئی موومنٹ چلائی جا رہی ہیں کہ اس کو ہم کیسے روک لگائے۔ آیارانچ بیاں سب کے سامنے یہ بات آیا ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ مبذول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ رزق کے بارے میں نوجوانوں کو کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کے لیے پرمٹڈ ہے وہی سٹرگل وہ جاری و ساری رکھے، اور مستقبل قریب میں ان کے لیے وہ راہ اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پوسٹ اور میں برہان رشید۔ اس وقت جو کشمیر میں صورتحال بنی ہے واقعی تشویشناک ہے۔ 20 نوجوان یا 25 سالہ نوجوان کی بات کریں، خودکشی کے شکار ہو رہے ہیں۔ جن نوجوان طبقوں کی اس قوم کی ضرورت ہے وہی لگاتار اس وقت خودکشیوں کو شکار بنتے ہی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے ساتھ موجود ہے شیخ مولانا مشتاق احمد ویرے صاحب۔ مشتاق صاحب، سب سے پہلے خیر مقدم کرنا چاہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ مشتاق صاحب، پہلے جاننا چاہیں گے کہ نوجوان جو طبقہ ہے، چاہے 20 سالہ نوجوان کی بات کریں چاہے 25 سالہ، لگاتار اس وقت خودکشی کے شکار بنتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس وقت؟ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید والقرآن العظیم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ جہاں تک اس اہم اور تشویشناک صورتحال کا تعلق ہے، اس بارے میں جو دینی نقطہ نگاہ سے میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ میں نے سب سے پہلے جو ایک آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں صاف طور پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کیا کرو۔ شرعی طور پر یہ آپ کے لیے پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے۔ لیکن آئے دن جو ہم یہ واقعات اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں جہاں تک میرا تجزیہ کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اس صورتحال پر جتنا بھی تشویش اور جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہمارے دین میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کو کسی بھی دکھ یا تکلیف یا مرتے ہوئے اس حد تک پیش کیا کہ وہ اس دنیا میں اپنے لحظات و لمحات حیاتاً پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کا بھلا کیا، اور جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور انسانی جان کی قدر ہے، قیمت ہے، اور اس کا ویلیو ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال وادی کشمیر میں بنی ہوئی ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ میں اپنا تجزیہ آپ میڈیا والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جتنا بھی اس فعل پہ افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس عمل کو ہم اگر کبھی عمل سے تعبیر کرے، غیر انسانی عمل سے تعبیر کرے، غیر اخلاقی عمل سے تعبیر کرے، غیر شرعی اور غیر انسانی عمل سے تعبیر کرے، وہ اس کے لیے زیبا ہے، شایع ہے، برحق ہے۔ لیکن یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑے؟ اس کے کیا وجوہات ہیں؟
सबसे बड़ा जो वजह ये है कि हम अपने घरों में अपने नौनिहालों की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहे हैं। हमने अपने नौनिहालों को बचपन ही से उस हद तक बुला डाला कि आजकल वालिदैन को ये पता नहीं है कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ उसके तई मुझे इंसानी तौर पर और शरई तौर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती है उनसे वालिदैन बेबहरा नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले वालिदैन को ये देखना चाहिए कि मुझे अपने औलाद के तई कौन सी ज़िम्मेदारी आयद की गई है जिसका मुझे मुकल्लफ ठहराया गया है कि वो आपको किसी भी सूरत में उन बच्चों तक लेने के लिए और उसकी हक़ अदाई के लिए अल्लाह के यहाँ न सिर्फ सवाल होगा बल्कि उस बारे में मेरे आखिरत का फ़ैसला किया जाएगा। एक हदीस में ये तक कहा गया है कि अगर एक वालिद अपने आप को रिलीजियसली उस हद तक साउंड पेश करे कि वो अपने अमल से दाखिली जन्नत का मुस्तहिक भी हो, लेकिन सही नुसूस में ये कहा गया है कि एक बेटा अल्लाह के हुजूर उसका मुकद्दमा पेश करेगा कि मेरे वालिद से ये पूछा जाए कि क्या मेरे वालिद ने मेरे हुकूक की हक़ अदायगी की है, क्या इसने मुझे वो हक़ दिया है जो रिलीजियसली इस पर अल्लाह की तरफ से आयद किया गया था, क्या इसने बचपन में मुझे वो तालीम व तरबियत दी जिसकी इस पर ज़िम्मेदारी आयद की गई थी। लेकिन आज के वालिदैन जो हमें नज़र आ रहे हैं वो इस चीज़ से बहुत बईद नज़र आ रहे हैं। उनको ये तक मालूम नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को 7 साल की उम्र में अपने साथ मस्जिद तक लेना इस्लामी तौर पर रिलीजियसली सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी आयद की गई है और 3 साल का उर्सा उसको दिया गया है कि 3 साल तक उसको ये ज़िम्मेदारी निभानी होगी कि 10 साल की उम्र में किसी भी बच्चे से ये किरदार नहीं देखने को मिलना चाहिए कि वो बेनमाजी है, वो मस्जिद से बईद नज़र आए, वो मस्जिद से दूर नज़र आए। सबसे पहले अपने घरों का हमें एहतिसाब करना चाहिए कि हम क्या अपनी ज़िम्मेदारी को रिलीजियसली, मॉरली, सोशली हम निभा रहे हैं। बुनियादी वजह यह है। दूसरा जो बुनियादी वजह इस बारे में ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहसित वालिद ये ज़िम्मेदारी आयद की कि आपको अकाउंटेबिलिटी अपने अयाल के तई हर वक्त इस्लामिकली और रिलीजियसली आयद की गई है, जिसकी तरफ हमारे बड़ों का आजकल तवज्जो ही मरकूज़ नहीं है। एहतिसाब की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल अयाल की तरफ इस हद तक तवज्जो मबजूल की है कि अगर मामूली कोताही भी उनसे सरजद होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सामने हमारे बच्चे वो हरकत और वो अमाल अंजाम दे रहे हैं जिसकी शरीयत में और अखलाकी तौर पर और समाजी तौर पर और इंसानी तौर पर किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं है। उस अकाउंटेबिलिटी की तरफ हमें अपना तवज्जो मबजूल करना चाहिए। तीसरा वजह ये है कि आजकल जो ड्रग आम हुआ है, जो हमारे बच्चे नौनिहाल 12 साल से 17 साल की उम्र में ड्रग एडिक्ट बने हुए हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। उस पर हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। जबकि हम सोसाइटी में देखते हैं कि इस चीज़ की तरफ न बड़ों का रुझान है, न जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं न उनका रुझान है, और ना रिलीजियसली उस पर कोई मूवमेंट चलाई जा रही है कि इसको हम कैसे रोक लगाए, इसको हम कैसे अपने बच्चों से दूर रखें, इस पर किस हद तक हम अपने आप को एक्टिवेट पेश करते हैं, किस हद तक हम इस मामले में अपने आप को मुतहर्रिक पेश करते हैं। अयारांची बया
سب کے سامنے یہ بات آیا ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ مبذول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیٹا اس فعل بد کا شکار ہو چکا ہے، اس کی بیٹی اس فعل بد کی شکار ہو چکی ہے۔ کوئی ہنستا ہے، کوئی کھیلتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، لیکن کوئی اس پہ وہ عمل اور وہ کردار پیش نہیں کرتا ہے جو انسانی طور پر ہمیں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، دینی طور پر ہمیں ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیوں ہمارے نونہال اس چیز کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے نونہال اس چیز کے شکار ہو رہے ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی چیز لیک کر رہے ہیں جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے؟ کیا ہم وہ ماحول پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جس پہ ہمیں ابھارا گیا ہے، جس پہ ہمیں زور دیا گیا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ مبذول کی گئی تھی، جو ہمیں بحیثیت والد ذمہ داری عائد تھی، وہ ذمہ داری ہم نبھانے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ اس ڈرگ کے متعلق جو پاور میں ہے، جو اس وقت آن دا ہیلم آف افیئرس ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس کی طرف توجہ اپنی دیں تو مجھے امید قوی ہے کہ اس صورتحال سے سوسائٹی کو ودن نو ٹائم چھٹکارا ملنے کی امید اور توقع حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مسٹر صاحب، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اس وقت جو حالات کشمیر میں بنی ہے، پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار نظر آ رہے ہیں، ان ایمپلائمنٹ ہے اس وقت، تو کیا اسباب ہے اس نوجوان طبقے کو ان حالاتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ بھی میں یہی بات کہوں گا کہ شاید ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑھنے کا مقصد صرف نوکری اور بزنس نہیں ہے۔ پڑھنے سے انسان کو وہ روشنی حاصل ہو رہی ہے جس سے وہ انسانیت کو کچھ کنٹریبیوٹ کر پائے۔ ایجوکیشن کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ ہم نے اپنی تعلیم کا صرف یہی مقصد اپنے اندر سما دیا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے فلانی آفس میں بحیثیت آفیسر تعینات ہو جائے، فلانی آفس میں ہم بحیثیت ہائی اپ اپنے آپ کو پیش کریں، جبکہ یہ پڑھنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کے اندر مورلی وہ سٹیبلٹی تھی جو آج بہت بڑے اپنے آپ کو کہنے والے میں بھی ذرن بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، رمکن بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اشارن بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف میں وہ کردار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہر وقت قابل افتخار اور قابل تحسین اور قابل دید ہے، لیکن انہوں نے مزدوری کی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ جب انہوں نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کو کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اور کوئی اس کے پاس بزنس نہیں تھی، کوئی نوکری نہیں تھی۔ اس نے اتنا بڑا صحابی جلیل ہونے کے باوجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اس حد تک مزدوری میں پیش کیا کہ اس نے اپنے سر مبارک پہ پنیر اور گھی لے کے اپنے اہل و عیال کی پرورش کی اور اپنے آپ کو سٹینڈ ود اون کیا، اور وہ پھر اس حد تک اللہ کے حضور اور اللہ کی تائید و نصرت سے کامیاب و کامران ہوا کہ جب اس کی وراثت تقسیم کی گئی تو ایک بہت بڑی جماعت کو مزدوری پہ لایا گیا جنہوں نے اس سونے کو توڑنے میں پیش کیا جو اس کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ لہذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے گریجویشن کی ہے، بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، کہ اس پہ مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے کہ میں ہائی آفیشل بن جاؤں۔ نالج کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر انسانیت جاگ اٹھے، میرے اندر وہ کرنے کی امنگ اور وہ کرنے کی امید، وہ کرنے کی صلاحیت ابھر آئے کہ جس سے میں انسانیت کو کچھ دے پاؤں۔ اصل پڑھا لکھا وہی ہے جو انسانیت کے تئیں کچھ کنٹریبیوٹ کرے، اور پڑھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے نوکری ملنی چاہیے۔ جو
बिज़नेस हैं, जो तिजारत हैं, जो मजदूरी है, जो ज़मींदारी है, जो मुख्तलिफ़ शुबहाए हयात है, उन पे अपने आप को एडजस्ट करने की हमें सोचनी चाहिए। उस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, न कि हमें पढ़ लिख के अपने आप को खुदकशी या सुसाइड में पेश करने की अपनी ज़िंदगी का ख़ातिमा पेश करना चाहिए। ये फ़अल कभी हैं, गैर शरई हैं, गैर इंसानी है, और इसको हम पढ़ाई से ताबीर नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन से ताबीर नहीं कर पाएंगे। इट इज़ टोटली इग्नोरेंस, इट इज़ टोटली इलिटरेसी, इट इज़ नॉट एजुकेशन। क्या करना चाहेंगे अगर पेरेंट्स की बात करें? मुझे नहीं, इस वक्त नहीं लगता कि नौजवान तबकों को वो अपने बच्चों को खास ख्याल रख रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं इस वक्त नौजवान तबके जो है इस वक्त खुदकुशी का शिकार करना चाहिए। इस हालत में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पहले ही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो प्रीशियस पीरियड है, जिसको हम बचपन से ताबीर करते हैं, असल अल्लामा इकबाल का एक शायर मुझे जहन में आया। उसने इस सूरत हाल का नक्शा खींच के हमारे सामने पेश किया। अल्लामा कहते हैं कि खिश्त अव्वल चुनेहद मेमार कज ता सुरैया मेरव देवार कज। सुरैया एक सितारे का नाम है। अल्लामा का कहना है कि अगर आप लोग दीवार खड़ा करना चाहते हो, दीवार बनाना चाहते हो, दीवार तामीर करना चाहते हो, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि कई इस दीवार में पहले ही ईंट टीडी तौर पर हमने नहीं तो लगाई। अगर फिर वो पहली जो ईंट है, अगर वो टीडी हमने लगाई, अगर इस दीवार को हम सुरैया तक ले जाए, वो लेकिन वो टीडापन उसका वही का वही रहेगा। यही मामला ये है कि अगर हम बचपन में अपने बच्चों की तरफ तवज्जो न देंगे तो हमें ये दिन ज़रूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि बचपन वो कीमती पीरियड है, वो प्रीशियस पीरियड है, जिसमें जिस तरफ भी हम अपने बच्चों को लेना चाहिए उस तरफ उनकी टेंडेंसी हमें नजर आए, उनका झुकाव हमें नजर आए। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जो तोहफा है वालिदैन की तरफ से अपने बच्चों को, मा नहल वालिदुन अन वलदिही इल्ला मिन हुस्न अदब। सबसे बड़ा जो तोहफा है वो हुस्न अदब है, वो हुस्न अखलाक है, वो मॉरल एजुकेशन है। इस वक्त दुनिया कहती है कि मॉरल एजुकेशन इज कंपल्सरी। व्हाट मीन इज मॉरल एजुकेशन? इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज रिलीजियस एजुकेशन, इट इज रिलीजियस एजुकेशन। इसके बगैर हम मॉरल एजुकेशन का तस्वुर ही नहीं कर पाएंगे। जो दीनी तालीम है उसी में अखलाक पाया जाता है, उसी में मॉरलिटी पाई जाती है। जो बाकी तालीम है, इट इज ओनली फॉर टू अचीव मनी, इट इज ओनली फॉर टू गेन मनी। और अगर हम मॉरली अपने आप को स्टैंड देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मजहब की तरफ, दीन की तरफ अपने बच्चों को ले आए। और दीन से जब तक हम अपने बच्चों को न जुड़े तब तक हम अपने बच्चों में मॉरली स्टेबिलिटी नहीं देख पाएंगे। मॉरली अगर हम अपने बच्चों को स्टैंड देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को आलमगीर तालीम की तरफ, आफाकी तालीम की तरफ उनका तवज्जो मबजूल करें। यही उनके लिए इस सूरत हाल से निकलने का वो रास्ता देगा जो पायदार होगा, जो मजबूत होगा और जो हमेशा के लिए उनसे उस खतरे से दूर रखने का मुकम्मल नुस्खा होगा। आखिर में नौजवान तबकों से आपको आखिर में क्या मैसेज रहेगी? जो 3 बुनियादी वजह हैं खुदकशी के, मेरे ख्याल में वो सबसे पहले इस वक्त जो है वो ड्रग एडिक्शन है। सबसे पहले नौजवानों को इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। इसीलिए हदीस में कहा गया है, मा अस्करु कसीरन फ़क़लीलुहु हरामुन। जिसका ज़्यादा नशा पैदा करे उसका थोड़ा इस्तेमाल भी इस्लाम में हराम है, थोड़ा इस्तेमाल भी। हम देखते हैं कि बाद औकात में हम अपने वालिदैन की तरफ ये किरदार भी देखते हैं कि वो बच्चों को सिगरेट लाने के लिए दुकान पे बेचते हैं। और कश्मीर में कल तक ये रिवाज पाया जाता था कि हम जो
अपने घरों में माहौल पाते थे वो ये था कि हम अपने बच्चों से उस चीज़ का इस्तेमाल करने में कोई आर महसूस नहीं करते थे, वालेकुम, जिसको हम कश्मीरी में जजीर कहते हैं, हुक्का जिसको हम कहते हैं। हुक्के में हमारी माँ भी मुलविस थी, हुक्के में हमारा बाप भी मुलविस था, हुक्के में हमारे बड़े भी मुलविस थे और छोटे भी मुलविस थे। मैं आपको एक वाक़ा सुनाऊंगा। मुहद्दिस पंजाब हैं अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन पंजाब के किसी इलाके में उसका एक दीनी प्रोग्राम था, खुशक साली वहाँ पे पाई जाती थी। अब्दुल्ला रोपड़ी की तरफ अवामुन्नास मुसलमान मुतवज्जह हुए, मौलाना आप दुआ कीजिए कि अल्लाह बारिश बरसाए, अल्लाह खुशक साली को दूर करे। तो अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह ने उनसे कहा कि आपके घरों में एक गुनाह पाया जाता है, एक गैर शरई अमल पाई जाती है, जब तक आप लोग उससे अपने आप को दूर न करें तब तक मेरी दुआ का कोई असर नहीं होगा। सब हैरान शशदर रह गए कि ये कौन सी अमल है जिससे अब्दुल्ला रोपड़ी भी परेशान व पशेमान है। अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि आपके घरों में हुक्का पाया जाता है, आप लोग हुक्के को बाहर निकालिए, तब मैं दुआ करूँगा, और उम्मीद कवी है मुझे हुक्का बाहर निकलने के बाद मेरी दुआ अल्लाह के हक कबूल होगा। अगर हम देखेंगे अपने घरों की तरफ, शराब भी आम है, सिगरेट भी आम है, और फ़ख्रन यहाँ पे वालिद साहब कहता है कि मेरा बच्चा आम सिगरेट नहीं पीता है, मेरा बच्चा बहुत कीमती सिगरेट पीने वाला है। सबसे पहला जो बुनियादी वजह है वो नशा है, ड्रग है। इससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसकी तरफ वालिदैन को तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है, बच्चों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कई मेरे बच्चा सिगरेट का आदी तो नहीं बना, सिगरेट का आदी बनने के बाद वो फिर उन आदात का शिकार होता है जो हम आजकल देख रहे हैं। एक वजह यह है। दूसरा वजह यह है कि इमैच्योर हाथों में मोबाइल थमाया गया। इमैच्योर हाथों में मोबाइल थमाने के जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि आजकल बच्चा मस्त नींद में, बहुत अंधेरे में, करीबन 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे अचानक उसके मुंह से ये आवाज़ निकलती है कि मोरहस मोरहस, मुझे मारा गया, मुझे मारा गया। माँ जब बेदार होती हैं तो वो अपने बच्चे की तरफ ये अल्फाज दोहराते हैं, बच्चा आपको किसने मारा? बच्चा मोबाइल पे फ्री फायर गेम खेलता होता है और उसको लगता है कि शायद फ्री फायर गेम खेलने से मुझे कोई हमला आवर हो रहा है, और उसका जहन उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह है। दूसरा वजह यह है कि इमैच्योर हाथों में जो मोबाइल थमाया गया है उसको वापस लेना चाहिए। हाँ, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ज़रूरत पड़ती है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करे, लेकिन वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि उसी वक्त तक अपने बच्चों में मोबाइल दिया जाए जिस वक्त तक उनको ऑनलाइन क्लासेस हैं, फ़ौरन उनसे वो मोबाइल वापस लेने चाहिए। और क्लासेस के दौरान भी अगर वक्त उनको इजाज़त देता है तो अपने सामने बच्चों को रखे और इधर उधर खेलने की इजाज़त ना दी जाए। नंबर 3 जो है, सीरियल 3 पे जो मैंने तज्जिया किया वो ये है कि शादी भी एक बुनियादी वजह है। शादी, क्योंकि इस्लामिकली इसमें बैलेंस्ड कैरेक्टर हमें दिया गया है। जहाँ तक वालिदैन का ताल्लुक़ है उनकी रजामंदी कंपलसरी है, लेकिन बच्चों की रजामंदी का भी इस्लाम ने ख्याल रखा है। बच्चों से भी पूछा जाए कि मैं आपका भला चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल है, आपने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी है, आपने ज़िंदगी के नशीब फराज नहीं देखे हैं, मैंने ज़िंदगी के नशीब फराज देखे हैं, और मैं आपका वालिद हूँ, मैं आपका हमेशा भला चाहता हूँ, मैं आपके लिए कभी भी नुकसान पसंद नहीं करूँगा। और शादी में अपने बच्चों को एतमाद में लेना चाहिए। और ये चंद वजूहात जो मैंने आपके सामने बयान किए, अगर इसकी तरफ वालिदैन तवज्जो दे, बच्चों को
मॉरल एजुकेशन की तरफ, दीनी तालीम की तरफ अगर अपने बच्चों को वो इस वक्त फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली अगर वो उस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करे तो मुझे उम्मीद कवी है कि ये रुझान दिन ब दिन कम होता जाएगा और हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। नौजवानों को किसी भी सूरत में परेशान होने के बाद इस चीज़ की तरफ कभी भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्लाह ने हमें ये वादा किया है कि मैं आपका रज़्ज़ाक़ हूँ। अल्लाह ने उसी वक्त हमारे रिज़्क़ का इंतज़ाम व इंसराम किया है जब हम वालिद मोहतरमा के रहम मादर में होते हैं, उसी वक्त हमारा रिज़्क़ का इंतज़ाम व इंसराम किया गया है। इसलिए रिज़्क़ के बारे में नौजवानों को कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। जो उनके लिए परमिटेड है वही स्ट्रगल वो जारी सारी रखे और मुस्तक़बिल करीब में उनके लिए वो राह अल्लाह ताला पेश करेगा जो उनके लिए काबिल इत्मीनान होगी, जो उनके लिए काबिल इफ्तिखार होगी। यही मेरी गुजारिश है। शुक्रिया। यह हमारे साथ मौजूद है शेख मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी। हमारी प्राइम पोस्ट की तरफ से नौजवान तबकों से यही मैसेज रहेगी, अगर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, अपने पेरेंट्स है शेयर करने के लिए, अपने दोस्त है, लेकिन खुदकुशी करना किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, तो हमारी मैसेज यही रहेगी कि स्ट्रगल लाइफ में हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है और स्ट्रगल करना भी चाहिए, तभी हम किसी मरहले तक आगे पहुंच सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त में इब्राहिम रशीद, प्राइम पोस्ट अनंतनाग।